aspirants, good evening. Hope you all are preparing well for your respective exams. My name is Arvind. I have graduated from IIT Kanpur with a bachelor's degree in civil engineering, and I cracked GATE 2021 with an All India rank of 41 and GATE 2020 with an All India rank of 91. And I'm currently working as an assistant executive engineer in Roads and Buildings Department, Andhra Pradesh. And please join our Telegram channel for the material regarding your preparation, examination, and topics. And for any updates on the live classes or problem solving sessions. Please subscribe to Unacademy, where you can find two types of subscription. With Plus subscription, you can get live classes. You can download them and listen to them offline as well. And you will get access to the test series weekly. And you get a systematic structured courses which were taught by the very much qualified teachers, and unlimited access. You can watch a video as many times as you can, and you can use the rank improvement batch classes to improve the rank. They will teach the types of questions and so on, and you can get access through the crash course, which will be very helpful to revise a particular subject. And if you get into the big picture, there is an iconic subscription. Along with Plus, you will get a personal coach with whom you can have one-to-one interaction and dedicated doubt clearing sessions for yourself, and a study planner. According to your time, he will manage you, adjust your study program, and personalized test analysis and the preparatory study material. Here you can see the fee for the respective subscriptions. You can use ARVD10 for 10% discount. Okay. Let's talk about the GATE examination and how to start with it and the approach till the end. Okay. If you look into the examination, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो there will be total number of 65 questions, in which 10 were from non-tech part and 55 from technical perspective. In these two categories, non-tech में आपको 15 मार्क्स से पूछेंगे और टेक्निकल से आपको 85 मार्क्स से पूछेंगे. ओके, देन आप शुरू करते हैं. कैसे शुरू करना है फ्रॉम स्क्रैच. जनरली लोग एक कोर्स में एनरोल कर लेते हैं कोई भी बैच में और सेल्फ स्टडी भी करते हैं. मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी बैच में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एडवांटेजेस क्या होता है कि बैच ज्वाइन करने से आप जो 3 घंटे सेल्फ स्टडी में कर लेते हो वो आपको 1 घंटे में समझ आ जाएगा कोचिंग करके. एंड बेटर इंसाइट ओवर स्किल्स. यू डोंट हैव टू स्टडी आउट ऑफ द टॉपिक्स. इन कोचिंग दे विल give the idea about the concepts which are related to your respective exam, so you don't overdo or underdo the syllabus. And they will be approaching to shape you in the particular exam orientation. Okay, अब मान लो कि आप कोई बैच ज्वाइन कर लिया. आपको करना क्या होता है ज्वाइन करने के बाद? बी रेगुलर टू द लेक्चर्स. आप कंटिन्यूसली जो भी एनरोल हुआ है आपने जिस कोई भी बैच में, आप उसको रेगुलरली सुन लेना, स्किप मत करना. क्यों? कंटिन्यूटी मेंटेन होने से यूनिफॉर्मली आपका प्रिपरेशन चलता जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा दिखेगा. अगर आप मान लो कोई भी ऑनलाइन क्लास मिस हो गया तो आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं. अनअकैडमी में आप ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगा. तो आप ट्राई कीजिए कि मिस ना करें कोई भी लेक्चर, और बी अटेंटिव इन द क्लास. आप लेक्चर ज्वाइन कर लिया कि आप मतलब you have been decided to prepare for the GATE exam, so keep focus on the lecture rather than being concentrating on something else. एंड आप लेक्चर सुन लेते हो, आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे क्लियरली आपको समझा देते हैं, लेकिन उस पर आप एक नोट्स बना लेना, क्योंकि आप ये सब रिटेन नहीं कर पाते. 1 साल तक आपको वो चीज़ें याद रखना होता है.
जब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो तब तक आपको भूलना नहीं हो, तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर ए नोट्स एंड ट्राई क्लियरिंग योर द डाउट्स इन द क्लास इटसेल्फ। आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फील होता है सबके सामने डाउट पूछने के लिए, मेरा भी होता था ये। और आपका अनअकैडमी में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी को भी पता नहीं चलेगा आप कैसे हो, कौन है ये सब पूछ रहा है ये सब। तो आप बेटर क्लियर कर लेना डाउट्स क्लास में ही, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड यू हैव फिनिश द लेक्चर एंड आफ्टर दैट what you have to do, just open your notes which have been taught in the class, go through it in a detailed way and highlight the keywords and formula। क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहे तो उसमें assumptions लिखा जाता है, उसके conceptually पढ़ा जाता है, उसको हाईलाइट कर देना। और फार्मूला के टर्म्स भी, फार्मूला में हर एक इंडिकेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो सब अंडरलाइन करके रख लेना, उसका यूनिट्स और सब कुछ। आपको नोट्स पढ़ने के बाद ट्राई टू एक्सप्लेन इट योर सेल्फ फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वो कितना समझ में आया है और इसको और कितना पढ़ना पड़ेगा। एंड सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक, देयर विल बी सॉल्व क्वेश्चंस इन द क्लास नोट्स इटसेल्फ एंड यू विल गेट द assignment type from the Unacademy Telegram channel and specially question solving sessions। आप देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको क्यों करना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। गेट एग्ज़ाम जो है वो लोग आपसे अप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट पूछते हैं। दे ट्राई टू आस्क द कॉन्सेप्ट इन एज मच एज लॉजिकल वे एज पॉसिबल। एंड सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स जैसे आरसीसी है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है और स्टील एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी मान लो, दे आर ओनली अंडरस्टूड बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आपको थ्योरी पढ़ने से इतना फ़ायदा नहीं होगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगा ग्रेजुअली। पहले आपको दिक्कत होता है, पहले बार आप तैयारी कर रहे हो तो शुरुआत में तो आप शुरुआत में इतना कैची नहीं होते हैं, आपको धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, आप ग्रेजुअली क्वेश्चंस करते जा रहे हो तो। एंड यू कैन अडाप्ट टू द यूसेज ऑफ द गेट कैलकुलेटर इन द एग्जाम। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक यू हैव टू सॉल्व एंड एनालाइज। एंड इसमें आपको पता चल जाएगा कैसा टाइप पूछता है। आपको आपने गेट एग्ज़ाम देखा तो उसमें पूछते हैं लॉजिकली पूछते हैं, फार्मूला टाइप पूछते हैं। और आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम देखा तो उसमें से आपसे ज़्यादा थ्योरी पूछता है, आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है एग्जामिनेशन ईएससी के लिए। एंड इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ट्राई करो कि आप लेक्चर के साथ साथ उसके पैरेलल उसका रिलेटेड प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते जाना। एंड नेक्स्ट, अब ये सब चीज़ है उसको आप डेली साइकिल बना देना एक शेड्यूल करके। पहले आप लेक्चर अटेंड करते हो, फिर नोट्स लिखते हो and solve the doubts if clear your doubts if any in the class, and go through the class notes after the lecture and solve the related problems and previous year। आप ये सब एक डेली शेड्यूल रख देना। एंड नेक्स्ट आते हैं टेस्ट सीरीज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको स्लाइट कंफ्यूजन्स होते हैं साइन कन्वेंशन में, यूनिट्स के टर्म मान लो। आप सॉल्यूशन देख के आपको लगता है कि बस छोटी सी गलती है, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन मैंने, लेकिन आप जब टेस्ट सीरीज देते हो आपको पता चलता है आप कितना क्लियर है उस कॉन्सेप्ट में। सो इट इज़ better to attempt to join a test series for any examination, and you can also see the accuracy in solving questions, how accurate you are and how many you can solve from the concepts you have known। and आपको एरर्स भी पता चलते हैं, आप कौन कौन सा टाइप एरर करते हो। कुछ सिली मिस्टेक्स भी आपको दिख जाते हैं, वो याद रहता है एग्ज़ाम के टाइम। आप एग्ज़ाम के बाद आपने देखा तो ऐसा टाइप क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया है
तो आपको याद रहेगा और फाइनल एग्जाम में वो रिपीट नहीं होगा, तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट यू कैन आल्सो सी योर रिलेटिव कंपटीशन। आप कौन सी पोजीशन में स्टैंड कर रहे हो उस रिलेटिव टॉपिक में, और आपको बेटर करना है, कैसा बेटर करना है, वो सब आपको पता चल जाएगा टेस्ट सीरीज के थ्रू। एंड जनरली टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज में पता चलता है, इसका आप ध्यान देना पड़ेगा। ये सब मेरा मतलब मेरे जर्नी में हुआ था ये सब एरर्स। आपका भी ये भी कॉमनली रहता है ये, और आपका कुछ अलग भी हो सकता है। एक होता है यूनिट्स कन्वेंशन, जैसा डिफ्लेक्शन के चैप्टर होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, उसमें ईआई के टर्म्स में किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कुछ लोग एमएम में निकालते हैं, कुछ लोग मीटर में निकालते हैं, उसको आप ध्यान देना पड़ता है कन्वर्शन करने में। So you have to solve more and more problems regarding to that to get comfortable with such topics. And ignoring the terms in formula, आपको जनरली लोग फार्मूला याद कर लेते हो लेकिन उसके टर्म्स को इतना ध्यान नहीं देते हैं। आपको मान ले कि पाइल फाउंडेशन में डायनेमिक टेस्ट में आता है आपको इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला, उसमें डिनोमिनेटर में आता है एस प्लस सी। एस ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट पर साइकिल लोड। क्वेश्चन में आपको पूछता है टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है 10 साइकिल्स में, वो वैल्यू आपको पता होना चाहिए उस फार्मूला अप्लाई करने में। तो आप वो डिटेल में पढ़ लेना, जब भी फार्मूला पढ़ते हो उस टर्म क्या होता है और उसका यूनिट्स क्या है, वो सब आप ध्यान दे देना उसके लिए। एंड एम्पेरिकल फार्मूला में होता है कि आपको यूनिट्स याद रखना पड़ता है। जैसा हाइड्रोलॉजी में मान ले एक डिस्चार्ज ऑफ ए यूनिट हाइड्रोग्राफ, उसमें एरिया कौन से यूनिट्स में होना चाहिए और टाइम कौन सी यूनिट्स में होना चाहिए। और आप एनवायरमेंटल में भी देखा तो ट्रिकलिंग फिल्टर का भी जो डिज़ाइन होता है उसमें जो फार्मूला होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, उसका यूनिट्स क्या क्या होना चाहिए, वो सब आपको डिटेल ही देखना पड़ेगा। ये सब एरर्स पढ़ने के टाइम इतना ध्यान नहीं देते हो ये सब चीज़ों में, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तब आपको लगता है क्यों गलत हुआ, मतलब क्या गलती है, तब आपको पता चलेगा। तो ये सब आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रेक्टिफाई होगा। एंड जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। जनरली क्वेश्चन कुछ आसान क्वेश्चन पूछ लेता है और एंड में देता है कि आंसर को इस यूनिट्स में निकालना और या इसके हाफ निकालना, ऐसा कुछ पूछता है लास्ट लाइन में। तो ये सब ध्यान में रखते क्वेश्चन स्टार्ट से एंड तक पूरा पढ़ना और उसको समझने के बाद तब अटेम्प्ट करना, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि गेट में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूडेड होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। वो जान पूछ के ऐसा सवाल पूछते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट कर सके रैंकिंग्स में। एंड नेक्स्ट अब आता है नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल में आपको दिख जाएगा एप्टीट्यूड एंड वर्बल रीजनिंग 15 मार्क्स का पड़ता है और मैथमेटिक्स 10 to 12 मार्क्स अलोन। मैथमेटिक्स को बहुत लोग छोड़ देते हैं, this is as equal as important core subjects like soil mechanics and environmental engineering, and the chapters in mathematics are only 4 or 5 are civil engineering, linear algebra, calculus, numerical approximations and probability। जब कोई भी कोर के सब्जेक्ट लिया तो सॉइल का जनरली 10 to 15 मार्क्स पूछता है वो एग्जाम में। मैथमेटिक्स से ही रिलेटिव उतना ही आता है 10 to 12 मार्क्स। अगर आप सिलेबस कंपेयर कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स में कितना होता है, मैथमेटिक्स में कितना होता है, मैथमेटिक्स इक्वली नियरली 40% ऑफ सॉइल सिलेबस होता है, क्योंकि 4 चैप्टर रहते हैं। हाँ फार्मूला तो थोड़ा ज़्यादा है। आप और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मैथमेटिक्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर आप इस साल में देखा तो अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछा है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मिला के। तो इसको आप इग्नोर मत करना, इसको भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे ट्रीट करना। एंड नेक्स्ट अगर आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की बात करें तो इसको आप डेली कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लो वही काफ़ी है। जब भी आप क्लास से पहले कुछ टाइम मिल जाता है और क्लास के बाद 5-10 मिनट बैठ के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो काफ़ी है। एंड उसको एंड मत इग्नोर मत करना, काफ़ी भारी पड़ता है। एंड नेक्स्ट आपको जनरली नवंबर या दिसंबर तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
and then you will start revision for the syllabus you have been taught. जितना आप ध्यान से लेक्चर सुन लेते हो, नोट्स पे लिख लेते हो, पूरा रिटेन तो नहीं कर पाते आप लोग। तो इसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के पहले। आपको मेरा इस टाइप का हुआ था रिवीजन, एंड मेरा रैंक भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी पहले अटेम्प्ट में ही एक अच्छा रैंक लेकर आए। When you read the class notes after the lectures, try to make a short notes out of any subject. Uh, uh, आप एग्जाम के पहले एक सब्जेक्ट नोट्स पढ़ना चाह रहे हो तो आपका एक पूरा दिन निकल जाता है। शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना कि जैसा सॉइल मान ले उसको 5 या 6 पेज में बन सकता है नोट्स। आप पहले क्लास नोट्स को 1-2 बार पढ़ लेना उसको, एंड यू कैन गो थ्रू द एवरी कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ and write it in the shortest way that you can convey it to yourself. उससे आप एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा और वेरी शॉर्ट भी रहेगा। आपको रिवीजन करने में यू कैन कंप्लीट इट इन 2 to 3 hours फॉर ईच सब्जेक्ट, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन द रिवीजन इन हायरार्की वे। आप पहले वेटेज चेक करिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पूछता है, कौन सा लेस फ्रीक्वेंटली पूछता है, उसके हिसाब से पढ़ लेना। मान लो आप गलती से स्टील से शुरू कर दिया, स्टील की सिलेबस हेवी होता है और उसका वेटेज बहुत कम होता है। उसके वजह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं ख़त्म कर पाओगे। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले सॉइल, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये सब होता है, इनसे इनकी एक हायरार्की होती है। आपको शेयर करा जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप में, अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ पे देख लेना and go through the previous questions. When you first time solve the questions, you can't solve everything. There will be some doubts and some unclear concepts in them. Just mark the questions while you are attempting for the first time, which you have found the difficulty in solving, and in the revision, just go through the questions. आपको ये पता चल जाएगा जब आप सेम क्वेश्चन को सेकंड टाइम कर रहे हो तो आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर पाते, कुछ तब भी सॉल्व नहीं हो पाते। वो फिर से रिवाइज कर लो, आप उसको उनको फिर से सॉल्व कर लो, आप कंप्लीट कर देना हो ऐसा। एंड नेक्स्ट, आपके जो पास्ट टेस्ट सीरीज दिया है वीकली टेस्ट अनअकैडमी का, उसको आप एक नोट्स बना लेना। मिस्टेक्स कैसा किया, आप कुछ क्वेश्चंस फार्मूला नहीं पता होता है, सो उसके वजह से गलती हो जाता है, कुछ डायमेंशंस की वजह से गलती हो जाता है, कुछ सिली मिस्टेक्स होता है, जो जो आपको नया कॉन्सेप्ट मिला है और फार्मूला जो जो आप बार बार भूल जा रहे हैं, उन सबको टेस्ट सीरीज के थ्रू नोट्स बना लेना। और एक ये भी होता है इंपॉर्टेंट बात इस टेस्ट सीरीज का, आपको जनरली क्लास में 100% एफिशिएंटली नहीं कर पाते कोई भी प्रोफेसर, कोई भी एजुकेटर, कुछ कुछ छूट जाता है, वो आपको टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। इसकी वजह से आपको टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। एंड में आप फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड नंबर के बारे में आप फिक्र मत करना, कितना नंबर कम आ रहा है तो फिक्र मत करना, अच्छा आ रहा है, ज़्यादा नंबर आ रहा है तो अच्छा है, कम आ रहा है तो आपको एनालाइज करना है क्यों कम आ रहा है, कहाँ से गलती कर लो। एंड यू विल फाइंड सिली मिस्टेक्स इफ़ यू आर गेटिंग लेस, देर विल बी ए few questions where you could have scored but you couldn't due to some accidental errors. अब वो सब आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करते जाना ताकि आप फाइनल एग्जाम में मिनिमाइज कर सकते हैं। तो दिस विल बी लॉट हेल्पफुल। एंड पीरियोडिकली रिवाइज द शॉर्ट नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड। आप एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट 2-3 घंटे दे देना लास्ट 1-2 मंथ्स में, शॉर्ट नोट्स पूरी स्टार्ट से एंड तक रिवाइज करने में। So that will retain the formulas till the exam. And do's and don'ts, जो पहले स्लाइड्स की समरी है उसके do's and don'ts देखते हैं। Maintain the daily schedule. Instead of studying 12 hours a day and living the next day and again 8 to 9 hours a day, it's better to constantly study 4 to 6 hours a day. That will make your preparation better. And next, try to clear your doubts in the class itself.
and you will have dedicated lessons from Unacademy educators for doubt clearance for the students, and you can avail that for a better rank. And don't hesitate to ask the faculty. We are there to help you. We are there to improve your rank. And just revise the short notes frequently. एंड नॉन टेक पार्ट को आप इग्नोर मत करना एंड तक, उसको डायली थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेना, दैट विल डू इनफ. एंड जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं आपको ये मत सोचना कि यू हैव टू गो इन ए सीक्वेंशियल वे. जस्ट go through the paper and find the questions which you are comfortable, which you are easy, and don't care if you don't if you can't solve any one question or two, any first 1-2 questions which appeared in the test exam. There were 65 questions and you have prepared, you have attended the lectures and revised thoroughly. If those few questions were tough for you, those will be tough for everybody. So आप जो क्वेश्चन आप कंफर्टेबल होता है वहाँ से स्टार्ट करना, आपके एग्जाम भी अच्छा जाएगा, मूड भी अच्छा रहेगा. एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ लेना, इंफॉर्मेशन और कौन से यूनिट्स में दिया है और कौन से यूनिट्स में वो पूछ रहे हैं, ये सब. एंड दैट्स इट. जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर द video updates on the lectures and problem solving sessions and the study material for your examination. And there are 2 packages in the Unacademy. One is Plus subscription, through which you can have access to the live classes, which you can avail during the offline by downloading on your app. And there will be weekly tests on every Sunday. And there is rank improvement batch. They will go through the problem solving sessions and unlimited access. You can watch video anytime, as many times as you can. And there will be class courses for quick revision before the exam. And we go into the bigger picture, that is Iconic subscription. You will get a personal coach. Is from very qualified educators, and you can have dedicated doubt clearing sessions with them, and there will be a study planner according to your free time. He will weekly analyze your study plan and give you the results. And there will be your test analysis. They will do the analysis and they will present you with the mistakes and where you can do better things. And there will be dedicated preparatory study material for yourself and practice sets to improve your problem solving ability for the exam. And here are the packages for Plus subscription and Iconic subscription. आप 2 साल का लिया तो आपको बस 1770 रुपीज़ पड़ेगा, और Iconic का आपको 2775 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा. एंड आप 1 ईयर का ले रहे हो तो 2434 रुपीज़ का पड़ेगा प्लस सब्सक्रिप्शन. एंड Iconic सब्सक्रिप्शन 3769 रुपीज़ का पड़ेगा. आप ARVD10 कोड यूज़ किया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा. And thank you. Please like, share and subscribe for Unacademy.